Hello everyone, this is Disha welcoming you to the Chance EduTech. Today I am going to take English of class 10 and the topic of today's lesson is the thief's story. This is a story from your supplementary reader, Footprints Without Feet. So let's begin this lesson. But before that, I want to give a brief introduction. This is a story of a young boy named Hari Singh and a 25 years old guy, Anil. So there are mainly two characters in this story. One is Hari Singh, who is a 15 years old boy, and the other is Anil, who is a 25 years old young boy. So Hari Singh is employed by Anil, and Hari Singh has been doing small robberies, pickpocketing, all these sort of things. But that 15 years old boy, he used to keep a new name whenever he used to change his employer. So he makes friendship with Anil and he is employed by Anil to work in his house. So before I give a introduction of this lesson, this story, you must know something about the writer. The writer is Ruskin Bond, who has written this story in a beautiful way. Ruskin Bond was born on 19th May 1934 in Kasauli, Punjab States Agency, British India. इनका जन्म 19 मई 1934 को हुआ था। कसौली एक जगह है, उस समय पंजाब स्टेट्स एजेंसी ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत ये आता था और ये अभी तक जीवित है। नाउ ही इज अलाइव। हिज फादर taught English to the princess of Jamnagar Palace and Ruskin and his sister Ellen lived there till he was 6. तो इसके पिता जो है ये इंग्लिश पढ़ाते थे जो जामनगर की प्रिंसेसेस राजकुमारियां थी, जामनगर पैलेस में वो इंग्लिश पढ़ाया करते थे। और इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम है एलन, तो वो भी वहां पर रहती थी 6 साल की उम्र तक। लेटर रस्किन्स फादर ज्वाइंड द रॉयल एयरफोर्स इन 1939 and Ruskin along with his mother and sister went to live at his maternal home at Dehradun. बाद में क्या हुआ कि रस्किन के पिता, इनके फादर रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन किए। ब्रिटिशर्स द्वारा ये रॉयल एयरफोर्स चलाया जाता था क्योंकि ब्रिटिशर्स का उस समय यहाँ पर शासन था। इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल एट दैट टाइम एंड his father joined the Royal Air Force and Ruskin Bond along with his mother and sister went to live at Dehradun at his maternal home, at his maternal uncle's house. Next. Shortly after that, he was sent to a boarding school in Mussoorie. और जब ये देहरादून चले गए रहने के लिए, ये और इनकी बहन अपने मां के साथ, तो वहां पर कुछ दिनों बाद बहुत ही कम समय में उनको एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। When Ruskin was 8 years old, his mother separated from his father and married a Punjabi Hindu Hari. जब रस्किन बॉन्ड 8 साल के थे, इनकी मां इनसे अलग हो गई, इनके फादर से, इनकी मां इनके फादर से अलग हो गई
जब ये 8 साल के थे और इनकी माँ जो है सेपरेशन होने के बाद एक पंजाबी हिंदू हरि नाम के एक व्यक्ति से विवाह कर लिया। His father arranged for Ruskin to be brought to New Delhi where he was posted. और इनके फादर ने अरेंज किया रस्किन को न्यू दिल्ली लाने के लिए, जहां इनके फादर का पोस्टिंग हुआ था रॉयल एयरफोर्स में। Bond has authored more than 500 short stories. So Ruskin Bond has written more than 500 short stories, essays and novels, which includes 69 books for children. तो 500 किताबें इन्होंने लिखे हैं, जिसमें से नॉवेल्स है, शॉर्ट स्टोरीज है, एसेज है, जिसमें से 69 बुक्स जो है ये बच्चों के ऊपर ही इन्होंने लिखा है। He was awarded the साहित्य अकेडमी अवार्ड in 1992 for A Tree Still Grow in Dehra। और साहित्य अकेडमी अवार्ड से इनको नवाजा गया। 1992 में एक किताब लिखे थे जिसका नाम था Our Trees Still Grow in Dehra। तो उसी के लिए, उस किताब के लेखन के लिए इनको नवाजा गया साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि बहुत ही माने फेमस अवार्ड है। तो जो लोग साहित्य में एक्सेल करते हैं उनको ये अवार्ड से नवाजा जाता है। He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014। इनको 1999 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और पद्म भूषण से 2014 में नवाजा गया। He lives with his adopted family in Landor, Mussoorie in the Indian state of Uttarakhand। अभी ये अपने एडॉप्टेड फैमिली के साथ रहते हैं। लैंडौर एक जगह है मसूरी में, जो कि उत्तराखंड का एक हिस्सा है। उत्तराखंड में ही ये जगह है मसूरी, और मसूरी एक हिल स्टेशन है, आप लोग सभी जानते होंगे। इट्स अ फेमस हिल स्टेशन एंड लैक्स ऑफ टूरिस्ट विजिट मसूरी एवरी ईयर। तो ये मसूरी में भी रहते हैं और ये मसूरी उत्तराखंड स्टेट में ही है। नाउ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। द स्टोरी फोकसेस ऑन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज एंड रिलेशनशिप्स। ये स्टोरी जो है ये क्या सजेस्ट करता है? इट फोकसेस ऑन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज एंड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज क्या होता है, इस स्टोरी में दर्शाया गया है, क्योंकि यह एक बहुत ही सुंदर कहानी है। इट इज इजियर फॉर ए थीफ टू बर्गल अ ग्रीडी मैन। तो एक रिलेशनशिप दिखाया गया है, दो लोगों का रिलेशनशिप के बारे में दर्शाया गया है इस कहानी में, क्योंकि किसी को चोरी करना, किसी का सामान चोरी करना बहुत ही आसान होता है किसी चोर के लिए। एक ग्रीडी मैन का, जो आदमी लालची होता है, उसका कोई सामान, कोई कीमती वस्तु, सोना चांदी या पैसा या रुपया चोरी हो जाता है, तो चोरी करना बहुत आसान होता है किसी ग्रीडी आदमी का। इट इज डिफिकल्ट इवन फॉर ए थीफ टू बर्गल अ केयरलेस एंड ऑनेस्ट पर्सन। मतलब थीफ क्या सोचता है, थीफ के मन में क्या आता है? कोई ग्रीडी आदमी को चोरी करना बहुत आसान होता है, और एक चोर को, एक केयरलेस एंड ऑनेस्ट पर्सन को बर्गल करने में, उसका चोरी करने में, उसका सामान को लूटने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, आसान होता है ग्रीडी आदमी का, अगर कोई वस्तु कोई चोरी कर लेता है, कोई चोर चोरी कर लेता है तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक केयरलेस, लापरवाह आदमी और एक ईमानदार आदमी का अगर कोई चोर चोरी करे तो यह एक बहुत ही माने एक चोर के लिए भी डिफिकल्ट हो सकता है। अगर चोर वैसा सोचेगा, उसके मन में ऐसी भावनाएं माने उत्पन्न होंगे कि क्यों मैं चोरी कर रहा हूं, ऐसे ऑनेस्ट आदमी का, तो बहुत मुश्किल काम है। अ यंग बॉय बिकम्स फ्रेंड्स विथ एनिल। जैसा कि मैंने बताया था, एक छोटा सा लड़का, 15 साल का वो बच्चा है, जो कि दोस्ती कर बैठता है एनिल के साथ। एनिल 25 साल का नवयुवक है, एक युवक है समझ लीजिए। एनिल ट्रस्ट हिम टोटली एंड एम्प्लॉयज हिम। एनिल उस बच्चे पर इतना विश्वास करता है, 15 साल के उस लड़के पर, कि उसको अपने यहाँ काम दे देता है। मतलब अपने घर पर
एक कुक का रूप में उसको एम्प्लॉय करता है। द स्टोरी इज अबाउट 15 years old thief। यह जो कहानी है एक 15 साल की उम्र का एक चोर के बारे में है, जो कि छोटा मोटा चोरी करता था और अब जहां जहां वो काम ढूंढता था, जिस एम्प्लॉयर के पास काम करता था, अपना नाम बदल लेता था। He used to change his name every month to stay ahead of the police and old employers। तो क्या करता था? What he used to do? He used to change his name every month so that his identity cannot be disclosed to the old employer and to the police and the old employer। उसके पहचान को न तो पुलिस को मालूम होगा, न ही पुराने जो लोग इसको काम पर रखे थे उनको नहीं पता चलेगा। इसीलिए वो अपना नाम बदला करता था हर महीने वो नए नए एम्प्लॉयर के पास काम करता था, नए मालिक के पास। दिस टाइम ही कॉल्ड हिमसेल्फ हरि सिंह। इस बार जब अनिल के साथ दोस्ती किया और अनिल के द्वारा एम्प्लॉयड हुआ, रोजगार पर रखा गया, तो अपना नाम हरि सिंह बताया। द अदर पर्सन अनिल इन द स्टोरी इज अ 25 years old राइटर। और दूसरा आदमी जो मैं अभी बताया था कि अनिल एक 25 साल का लेखक है। ही रोट फॉर मैगजीन्स, वो मैगजीन्स के लिए लिखा करता था। द थिप वन डे मीट्स अनिल एंड आस्क्स दैट इफ ही कैन वर्क फॉर हिम। तो एक दिन क्या करता है, यह जो चोर है हरि सिंह, उसकी मुलाकात हो जाती है अनिल से और अनिल से पूछता है कि क्या उसे काम मिल सकता है उसके यहां। तो यह अपना इच्छा जाहिर करता है कि अनिल के लिए वह काम करना चाहता है। द स्टोरी डिस्क्लोजेस हाउ द थीफ डिसीव्स अनिल बाय कमिटिंग थेफ्ट बट विथड्रॉज लेटर ऑन। यह स्टोरी यह बताता है कि किस प्रकार ये जो चोर है हरि सिंह अनिल को धोखा देता है। डिसीव्स मीन्स धोखा देना। अनिल को धोखा देता है, एक प्रकार का चोरी करता है, अनिल का पैसे चुराता है और बाद में फिर क्या करता है, वो वापस लौट जाता है अनिल के पास उस पैसे के साथ। वो पैसे फिर जहां था वहां पर वो रख देता है। तो अपना इस आदत को, ये जो चोरी वाला हैबिट को विथड्रॉ करता है। ही गिव्स अप स्टीलिंग, ही गिव्स अप द जॉब ऑफ रॉबरी बिकॉज ही हियर्स अ वॉइस फ्रॉम हिज कंसाइंस। उसके आत्मा से आवाज आती है कि एक ऑनेस्ट आदमी को धोखा नहीं देना चाहिए। इसीलिए क्या करता है वो, फिर ही गिव्स अप स्टीलिंग, ही गिव्स अप द जॉब ऑफ रॉबिंग। ओके, नेक्स्ट। सो द लेसन बिगिंस फ्रॉम हियर। तो यहां एक पिक्चर है किस प्रकार दोस्ती होता है, कोई आदमी किस प्रकार दोस्ती करता है। और इसी प्रकार से अनिल से हरि सिंह का दोस्ती हो गया था और अनिल उसको बहुत उसके ऊपर ट्रस्ट करता था। सो द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक जवान लड़का, 15 साल का जवान लड़का क्या करता है, अनिल से दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल उस पर पूरी तरह से विश्वास करता है और उसे काम पर रख लेता है, अपने यहां, अपने घर पर। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या यह लड़का इसके विश्वास को तोड़ता है, अनिल के विश्वास को तोड़ता है? तो मैं पहले ही बता दिया था, हां, पहले तो विश्वास को तोड़ता है, फिर उस विश्वास को फिर से बनाने की कोशिश करता है। तो आगे देखते हैं कैसे ये कहानी प्रोग्रेस करता है, हाउ द स्टोरी मूव्स। ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। I was still a thief when I met Anil। तो राइटर खुद अपने आप को हरि सिंह मान रहे हैं, जो नैरेटर हैं, कहानीकार हैं या लेखक हैं, वो अपने आप को हरि सिंह के जगह समझते हैं। इसीलिए फर्स्ट पर्सन में ही उन्होंने शुरुआत किया है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर से शुरुआत हुआ है। I was still a thief when I met Anil। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि हरि सिंह ही लेखक हैं और हरि सिंह का कथन है कि वो उस समय एक चोर ही था जब अनिल से उसकी मुलाकात हुई थी। जब हरि सिंह से अनिल की मुलाकात हुई
That time he was still a thief. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. और हालांकि वो 15 साल का ही एक किशोरावस्था का एज में था ये बच्चा हरि सिंह, फिर भी बहुत ही एक्सपीरियंस था, चोरी करने में माहिर था, किसी का पॉकेट मारने में एकदम महारत हासिल किया था, इतना तेज उसके हाथ थे, किसी का सफाया करना होता झट कर लेता था, पता नहीं चलता था, किसी का बटुआ मार लेगा, किसी का पॉकेट मार लेगा, कुछ किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए लिखा गया है एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। उसके हाथ, वो अपने हाथ का कमाल, मैंने वो हाथ का अपने कमाल को दिखाता था। कैसे? किसी का पॉकेट मार के, किसी के यहां चोरी करके। एनिल वॉज वॉचिंग अ रेस्लिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब हरि सिंह एनिल के पास गया, एनिल के नजदीक गया, उस समय एनिल एक कुश्ती वाले एक खेल देख रहे थे। He was watching a wrestling match when Hari Singh went close to Anil. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for many purpose. और एनिल जो था 25 साल का एक नौजवान था, लंबा दुबला पतला लड़का था और बहुत ही सिंपल। इसको समझ में आ गया हरि सिंह को कि इतना सिंप्लिसिटी था उस लड़के में, एनिल में, कि आराम से उसको अपने जाल में फंसा सकता है, अपने बातों में फंसा सकता है, और इसका जो जिस मतलब के लिए दोस्ती कर रहा है अपना मतलब को पूरा भी कर सकता है। इसीलिए पर्पस वाली बात लिखी गई है यहां। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. और कुछ महीनों से इसका लक साथ नहीं दे रहा था हरि सिंह का, जो कोई अच्छा हाथ मारे, अच्छा किसी का पैसा लूटे, ऐसा कुछ अभी तक इसको ऐसा इसका नसीब, इसका लक काम नहीं किया था, इसका नसीब साथ नहीं दिया था। और सोचा कि एनिल जो यंग मैन है, इसके कॉन्फिडेंस को जीतकर, इसके ट्रस्ट को, इसके विश्वास को जीतकर इसको अच्छा से धोखेबाजी करी इसके साथ इसके पैसा ऐंठे। तो यह प्लान किया था हरि सिंह ने कि किस प्रकार एनिल को बेवकूफ बनाकर उसके विश्वास को जीते और फिर उसको धोखा दे। यह इसका प्लान था। You look a bit of a wrestler yourself, I said. और हरि सिंह बोले, क्या बोले? अनिल से, अनिल की झूठी प्रशंसा करने लगे। कुछ लोगों का काम होता है कि अपनी बातों में ऐसे चापलूसी करेंगे कि अपनी बातों में फंसा लेंगे। हरि सिंह भी वैसा ही तेज तराज लड़का था, ठीक है। तो क्या किया? सबसे पहले अनिल से मिलता है और उसका प्रशंसा करता है। प्रशंसा में क्या कहता है? आप तो एक रेस्लर के जैसे दिखते हैं, आप में तो रेस्लर का क्वालिटी कुट का भरा हुआ है, अनिल से कहता है। कौन? हरि सिंह। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। और हरि सिंह का कथन है कि हल्की फुल्की अगर चापलूसी कर लिया जाए तो उससे दोस्ती हो जाती है। किसी का प्रशंसा, किसी व्यक्ति का कोई प्रशंसा करता है तो बहुत खुश होता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी का फ्लैटरी, किसी के चापलूसी में आ जाता है। तो फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। और तब अनिल जवाब देता है, क्या तुम रेसलिंग करते हो? हरि सिंह का बातों का जवाब देकर पूछता है कि क्या तुम रेसलिंग करते हो? और जिससे कि कुछ पल के लिए हरि सिंह चुप रह गया, क्योंकि उस समय हरि सिंह बहुत ही दुबला पतला था, रेसलिंग के लायक नहीं था। तो ये क्वेश्चन से थोड़ा सा घबराया। कौन? हरि सिंह। जो प्रश्न अनिल ने पूछा। तब हरि सिंह क्या जवाब देता है? वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेस्टल अ बिट। और फिर विनम्र भावना में ही हरि सिंह जवाब दिया कि मैं कभी कभार थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूं।
नेक्स्ट, व्हाट्स योर नेम? तब एनिल पूछता है हरि सिंह से, तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह, आई लाइड। हरि सिंह, और ये लेखक कहता है कि मेरा नाम हरि सिंह है, मतलब अपना डुप्लीकेट नाम रख लेता है हरि सिंह और अपने आप को हरि सिंह बताता है, ये झूठ बोलता है। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ। तो ये लेखक क्या करता था हरि सिंह, ये हर महीने एक अपना नाम बदलते रहता था और एक नया नाम रख देता था, अपना एक नया नाम रख देता था। That kept me ahead of police and my former employers। इससे क्या होता था, ये पुलिस से भी बच के रहता था और जिन लोगों के पास ये काम किया है पहले उससे भी दूर रहता था। मतलब इसकी आइडेंटिटी किसी को रिवील नहीं होता था, पता नहीं चलता था इसके पहचान के बारे में, इसीलिए हर महीने अपना नाम बदला करता था। कौन? हरि सिंह। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन एनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेस्लर्स who were grunting, lifting and throwing each other about। और इस परिचय के बाद एनिल उन वेल ऑयल रेस्लर्स, मतलब तेल रमाए हुए कुश्तीबाजों और पहलवानों के बारे में बात करता है, जिनका मेन बहुत ही घमंडी रेस्लर्स के बारे में बात करता है, जो कि बहुत ही ग्रंटिंग कैरेक्टर के रहते हैं, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो कि अपने आप को बहुत तिस्मारका समझते हैं, उन रेस्लर्स के बारे में बात करता है। आई डिडंट हैव मच टू से, एनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। और ज्यादा कुछ हरि सिंह बोल नहीं पाया, एनिल वहां से आगे बढ़ा, वॉकिंग करके आगे निकला और हरि सिंह कैजुअल तरीके में उसका पीछा किया, धीरे धीरे उसके पीछे गया। हेलो अगेन ही सेड। फिर एनिल बोला, हेलो करके बोला, क्या बात है? आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। तो हरि सिंह का एक बहुत ही अनोखा अंदाज था हंसने का, मुस्कुराने का, एक बहुत ही सुंदर मुस्कान दिया। किसको? एनिल को। अपने सुंदर मुस्कुराहट के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। और बोला कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, आपके पास कोई काम है तो बताए। तब एनिल बोलता है, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकता हूं, तुम्हें काम पर रख सकता हूं, तुमको भोजन दे सकता हूं, लेकिन मैं तुमको कोई सैलरी नहीं दे सकता हूं। नेक्स्ट, आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? तो एनिल जब जवाब दिया कि मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं दे सकता, कुछ पैसा नहीं दे सकता, दे सकता हूं जब तुम मेरे पास काम करोगे, तो थोड़ा देर क्या किया हरि सिंह, 1 मिनट के लिए इस पर सोच विचार किया और फिर सोचा कि मैं एनिल को मिसजज कर गया हूं। आई हैव मिसजज्ड हिम, मतलब मैं उसको मना नहीं पाया हूं। फिर हरि सिंह पूछा कि क्या आप मुझे खिला सकते हैं? कैन यू फीड मी? इफ आई वर्क फॉर यू, कैन यू गिव मी फूड फॉर 3 टाइम्स? कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तब यहां एनिल पूछता है, क्या तुम भोजन बना सकते हो, कुकिंग कर सकते हो? तब यहां हरि सिंह बोलता है कि मैं कुकिंग कर सकता हूं। झूठ मूठ का बोला, उसे कुकिंग नहीं आती थी, ये झूठ बात उसने अनिल को कहा। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तब अनिल कहता है कि अगर तुम कुक कर सकते हो तो हो सकता है मैं तुम्हें भोजन दे सकता हूं। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony। और अनिल क्या किया, उसको जमुना स्वीट शॉप के एक जगह था जहां जमुना स्वीट शॉप नाम का एक दुकान था, बहुत ही फेमस, और बोला कि आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी,
तो जमुना स्वीट शॉप था, उसके ऊपर में इसका रूम था अनिल का। तो वहां पर अनिल इसको ले जाता है और बोलता है कि तुम बैल्कोनी पर सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन जो खाना उस दिन बनाया, जिस दिन अनिल इसको ले गया, हरि सिंह को अपने साथ इसको एम्प्लॉय किया और ले गया अपने साथ रखने के लिए, उस दिन ये खाना बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत ही घटिया किस्म का भोजन बनाया है हरि सिंह, क्योंकि अनिल उस भोजन को एक गली के कुत्ते को दे दिया। तो इसी से मालूम होता है कि कितना घटिया भोजन बनाया हरि सिंह ने, और हरि सिंह को बोला कि यहां से दफा हो जाओ, यहां से चले जाओ। बट आई जस्ट hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing। लेकिन हरि सिंह अनिल से चिपका रहा, वो बिल्कुल जाने का नाम नहीं लिया और वहीं पर खड़े रहा और अपना अपीलिंग, मोस्ट अपीलिंग, सुंदर सा मुस्कान था इसके चेहरे पर, हरि सिंह के चेहरे पर, और इस मुस्कान को देखकर अनिल और कुछ ना नहीं कर सकता था, बल्कि अनिल भी हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। Later he patted me on the head and said, "Never mind, he would teach me to cook." और बाद में अनिल इसके मुस्कुराहट को देखकर इसको फिर दोबारा इसको अपने पास रखने का फैसला कर लेता है और इसके सर को थपथपाता है और कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे खाना बनाया जाता है। तो अनिल डिसाइडेड टू कीप हिम विथ हिम and to teach him to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। और अनिल इसे अपना नाम भी लिखना सिखाया हरि सिंह को, और यह भी बोला कि बस बहुत ही जल्दी उसको होल सेंटेंसेस कैसे लिखे जाते हैं यह सिखाएगा और नंबर्स कैसे जोड़े जाते हैं, क्योंकि हरि सिंह पढ़ा लिखा नहीं था, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसे पढ़ना लिखना भी सिखाना शुरू किया। आई वॉज ग्रेटफुल। हरि सिंह बहुत ही आभार प्रकट किया उस अनिल पर, बहुत आभारी रहा। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। और हरि सिंह उस वक्त सोचता है कि अनिल उसको लिखना पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, तो हरि सिंह यह सोचता है कि अब वो एक एडुकेटेड व्यक्ति बन जाएगा, लिखना सीख जाएगा तो एक एडुकेटेड व्यक्ति बन जाएगा, पढ़ा लिखा नौजवान बन जाएगा, और उसके बाद कोई लिमिट नहीं रहेगा उसके चोरी का, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी और भी चतुराई से चोरी कर सकता है, ये हरि सिंह का मानना था। तो सोचा कि मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तो चोरी को और बड़ा अंजाम दूंगा। It was quite pleasant working for अनिल। अनिल के साथ काम करना हरि सिंह का जो समय रहा बहुत अच्छा गया। It was a pleasant time working with Anil for Hari Singh। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supply, usually making a profit of about ₹1 a day। और सुबह में हरि सिंह अनिल के लिए चाय बनाता और उसके बाद जो समय बचता उसके बाद वो दिन भर में जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो सामान जरूरत रहते हैं खाना वाना बनाने के या जो भी डेली उसके सामान खरीदने के लिए, और दुकान पर चले जाता मार्केट में, और रोज ₹1 वो प्रॉफिट के रूप में कमाता। कौन? हरि सिंह। ₹1 सेव करता, ₹1 उससे मारता, उसके जो पैसे अनिल दिया करता था उसमें से ₹1 बचा लेता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind। हरि सिंह का सोच है, हरि सिंह का कहना है कि अनिल को शायद पता था कि हल्का फुल्का पैसा ये बना लेता है। अनिल को पता था कि हरि सिंह हल्का फुल्का पैसे बना लेता है, जो मार्केटिंग के लिए जो पैसा अनिल देता है, लेकिन अनिल इसके बारे में बिल्कुल सोचता नहीं है। उसको मालूम होगा कि हरि सिंह छोटा मोटा पैसा मारता होगा, लेकिन
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। एनिल कैसे पैसे कमाता था? झटके में कमाता था। एक ऐसा काम करता था कि उसको झटके में पैसे मिलते थे। ही वुड बोरो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट वीक। तो इसका जो एनिल जो पैसे कमाता था, इनका ये रेगुलर नहीं था, इरेगुलर था, इसीलिए फिट्स एंड स्टार्ट्स वाली बात यहां लिखी गई है। मतलब झटके में कमाता था। कोई एक ऐसा काम करता था, लिखने का काम करता था, लेखन का काम, और जो पब्लिशर को बेचता था किताब, और जो उसके अगेंस्ट में इसको पैसे मिलते थे, लेकिन समय से नहीं मिलते थे, कुछ अंतराल के बाद मिलते थे। He kept worrying about his next check। और जैसे एक चेक मिल जाता था अनिल को, तो दूसरे चेक के बारे में सोचते रहता था, उसके बारे में चिंतित रहता था कि कब मिलेगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और जैसे ही अनिल को पैसे मिल जाते उसके काम के अगेंस्ट में, वो जो काम करता था लेखन का कार्य, उसके अगेंस्ट में जब पैसे मिल जाते थे तो क्या करता था अनिल? बाहर चले जाता था और जश्न मनाता था, पार्टी मनाता था, ट्रीट करता था अपने दोस्तों के साथ, और बहुत एंजॉय करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। हरि सिंह का कहना है कि शायद वो मैगजीन्स के लिए लिखा करता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। और इसका बहुत अजीब अद्भुत जिंदगी था अनिल का, पैसे कमाने का, पैसे बनाने का। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन शाम की बात है, अनिल घर आया और उसके साथ अपने साथ एक छोटा सा बंडल था रुपए का। रुपए के छोटे से बंडल के साथ वो घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। और कुछ भी छिपाता नहीं था हरि सिंह से। हरि सिंह को यह भी बात बताया कि अभी हाल में उसने एक किताब बेचा है एक पब्लिशर को। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। तो हरि सिंह रात को देखा कि वो जो अनिल जो पैसे कमा कर लाया है नोट का बंडल, वो अपने गद्दे के नीचे रखता है, सर का नीचे जो गद्दा लेटा हुआ है उसके नीचे वो उन पैसों को रखता है। So, my dear students, that's all for today. I hope you are enjoying this lesson. So, I will come with the part 2 of this lesson in the next class. Till then, goodbye. See you. Thank you.